Good evening, everyone. This is Yashwant Ambulkar, Indian Forest Service officer of 22 batch. I have cleared the Indian Forest Service in a 2021 examination, and of which the result came in June 2022, and because of which we get the batch that is 2022. Basically, I am from Taluka Hinganghat in district Varda, which is very historic district in state of Maharashtra. I have done my BTech in mechanical engineering from Yashwantrao Chauhan College of Engineering, Nagpur, um in mechanical engineering. And then I had the opportunity to work in L&T as I got in through the campus placement in my final year of graduation. After graduation, I mean, during the graduation itself, I decided that I wanted to do UPSC examination, and the primary motive behind it was that I wanted to get a government job, since my father was also in government job. He was a PWD engineer, and I saw his life and the opportunities which he got to serve the society. So that was my primary motive to get into the civil services, and for that, UPSC was a best platform, and so I chose UPSC examination. In 2013 August, I started my journey and for preparing UPSC, and it has been a long journey of 8 years, which finally culminated into me getting selected into Indian Forest Service. Today, I will talk only about Indian Forest Service, which I started taking attempts from 2018 onwards. Uh, if few people might not be knowing that regarding the Indian Forest Service, it is a Group A service, and it is one of the three All India service. One being the other being the Indian Administrative Service, that is IAS. Then next is the Indian Police Service, IPS, and then it is the Indian Forest Service, that is IFS. IFS is the outcome of the Parliamentary Act, which was enacted in 1966, Indian Forest Act, Indian Forest Service Act, and because of which the service came into being. This primarily the Indian Forest Service examination is conducted by UPSC, for which there is common preliminary examination for both Civil Services exam and Indian Forest Service exam. So people, those who are sitting for Civil Services exam, the same paper in the prelims, the Indian Forest Service aspirants also appear. The only difference being is that since the number of seats for Indian Forest Service are very low, that it hovers around 100 to 140. So that is the cutoff goes very high. So like around 10, 12 marks above the cutoff of civil services examination prelims mark. So for this reason, it becomes a bit difficult to clear the preliminary stage of Indian Forest Service, or rather, I would say to clear the cutoff of Indian Forest Service, owing to the high cutoff which you have to get. The Indian Forest Service examination also has three main stages. That one is prelims, second is mains, and third is interview, or what you call is rightly called is a personality test. After that, you also have one walking test and medical test. Once you get into the final merit list. So let us focus upon now that regarding preliminary stage for Indian Forest Service.
So I would say that if you are aiming for Indian Forest Service, surely you need to put in more efforts as compared to a civil services examination aspirant, so that you can touch that higher cutoff of Indian Forest Service. So briefly, I will explain or I will talk about my strategy of prelims regarding the Indian Forest Service. Surely, one has to get hold of the conceptual understanding of all the basic terminologies of the syllabus of this prelims exam. So, what I would suggest for a new beginner or for even the aspirants who have just started or not able to get a hang of prelims examination, I would suggest that first you go through the syllabus of the Indian Forest Service, and side by side you also refer to the previous year question paper. The reason behind this is that you will get to know the width, length, and the depth of this examination. When you say syllabus, you will get to know the what is the dimension of this exam, and when I say previous year question, it gives you the depth to which the questions are being asked. So that is why these two things, that is syllabus and previous year question, becomes very important for you, for both beginners and also those who are finding it difficult to clear the exam. After getting to know the syllabus, you should focus upon the charting out number of days or number of months for each one should dedicate his preliminary examination study. If you are a fresher, surely you should take at least around 3 to 4 months of preliminary examination preparation, uh, because syllabus is very lengthy and you will have to go through multiple revisions to get to know what questions can be asked and how to tackle those questions. So for a new guy, surely at least 3 to 4 months of preparation is required. And for those who have already given 1 or 2 attempts, surely I would say at least 2.5 months you should aim to study for the preliminary examination. First thing first, that since you have started out, how many months, how many days you have to give for preliminary examination. Then out of that period, you should also focus upon how many revisions you will take. I will suggest take as many revisions you can, so that you are quite confident in the examination. So along with the first reading, you also need to focus upon the multiple revisions. First reading will take quite a lot of time because you are new to that syllabus. The concepts may be difficult for you to understand. So surely the first reading will take a time, but eventually the next subsequent multiple revisions, it will take a less time. So whenever you are doing your first revision, try to cover the syllabus in the required depth. The reason being that the syllabus is vast and questions are being asked from a lot of dimensions in prelims. Along with the reading of this syllabus in depth, I would also suggest, or rather, I would recommend that focus on the conceptual clarity. So of the all the concepts, all the basic things given in the syllabus. Uh, you did not go in detail of if of any notes of or any book or any other study material, but you should focus on the definitions, the concepts which that subject has. For example, in economics, you do have concepts of like GDP, then net GDP, then GNP, then now again we have green GDP. So something like this. You need to get the conceptual clarity of this question, these terminologies.
Once you get these basic things, it becomes very easier to understand the current affairs which are going on around you in your district, your state, in our India, and also around the world. So that is why understanding the basic things, understanding the concepts is very, very important. So first reading, during your first reading, you should focus on these things along with the completion of the syllabus. Then I would suggest that go for the solving the mocks examination. Mocks examination is like showing you the mirror that how much you have prepared and how do you respond in a exam like situation. And this also helps you in getting to know what more improvements you have to do in yourself so that you can perform at to optimum in the final or the actual examination of prelims. Don't go by the numbers of mocks being solved by some toppers or some of your friends. Some may say that I solved like 100 question papers. I like solved like 120 question papers. For them, it may suit, but I would suggest you may not go for that number of question papers or mock test. A decent number of 30, 40 mock test will definitely help you in getting that confidence and getting to know your mistakes. Uh, and based on my experiences that I have given 7 attempts, so I have a huge number of experience in prelims, and I did clear the forest cutoff quite a while. So I will say that sure, sure. There's a request that I should also go for Hindi. So I will try to speak in Hindi and English both. तो जैसे कि आप हम बात कर रहे थे अभी कि एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो एक्चुअल एग्जाम में आप देखोगे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी होता है, तो उस कारण से आपका थोड़ा मिस्टेक्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, फोकस शायद उतना नहीं रह पाता जितना आप चाहते हो. So to reduce or to mitigate all these issues like lack of focus, distractions, and nervousness, focus on solving the mock test. And second thing is learn from your mistakes which you're doing in the mock test. So what I used to do is that I used to solve maximum 30 to 40 mock papers in a time interval of say 3 to 4 days during my preparation for prelims. So after every mock test, I would analyze my mock test, how much questions I have answered. I would actually make a table that how many questions I have answered, how many questions I have made mistakes, how many questions I could have answered if I have applied some logics, in how many questions I made some silly mistakes. And then other column is what were those silly mistakes. So these were like my 5 columns जिसके जिसके बेसिस पे फिर मैं मेरे क्वेश्चंस मेरा अटेम्प्ट को मेरे मॉक टेस्ट को एनालाइज करता था और मैं फिर ट्राई करता था कि जो भी मिस्टेक्स मैंने इस मॉक टेस्ट में किए हैं वो अगली मॉक टेस्ट में ना हो. तो जब भी फिर मैं व्हेन आई गो बैक टू माय स्टडी टेबल टू रिवाइज द थिंग्स आई वुड कीप दिस माय मिस्टेक्स इन माय माइंड सो दैट मेरा एफर्ट कम लगता था, मेरा आउटपुट ज़्यादा हो रहा था और मेरे फिर सिली मिस्टेक्स तो निग्लिजिबल थे मेरे फिर. जैसे आई यूज्ड टू बबल रॉन्ग ऑप्शन, sometimes I misread or forgot to read the last word of the questions, like is it incorrect or correct. So there was some confusion in examination hall. Then again, in few questions, I would not read all the options. If I found the best option to be like 1 and 2, then straight away I would go for those 1 and 2. So these silly mistakes I could avoid based on my mock examination and improving upon my mistakes. So these things becomes crucial for all those who are aiming for clearing the
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी कट ऑफ। और आपको जैसे एग्जाम हॉल में कभी कभी होता है कि जब 2 घंटे जब टाइम कम बचता है, लास्ट लाइक 10-15 मिनट, और आपको मालूम पड़ता है कि यार आपने अटेम्प्ट अभी कम किया है, से अराउंड 80-85। सो आप चाहते हो कि यानी कि आप उसको अटेम्प्ट बढ़ाएं, उस चक्कर में कभी कभी हो जाता है कि आप ब्लाइंड गेस करने लग जाते हो। सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू, डू नॉट, नेवर, never ever go for blind guessing in prelims. You should take risk, but that risk should be calculated. अब calculated risk का मतलब क्या है? सपोज आपको यू आर नॉट श्योर इन टू ऑप्शंस, यार आइदर ए है या बी है, तो व्हाट यू कैन डू इज, like in first attempt of solving the question paper, you need to mark the questions which you are sure or you are very, very confident. For me, it would hardly be around 35 to 40 maximum out of 100 questions. So in second attempt, I would focus on those questions which I could successfully eliminate two options. So bache do. So what you can do is, based on your knowledge, you can go for attempting that question. Based on the wording of the question itself, again you can think logically what could be the answer, or rather, in some questions, what cannot be the option, or what cannot be the answer. So you can eliminate such options based on your calculated guesswork and not blind guesswork. And this calculated risk taking comes from conceptual clarity, multiple revisions, and the efforts which you have taken to overcome or mitigate your mistakes. Based on this, surely I can say that your prelims marks will increase based compared to your last year's performance. और अगर मैं चाहूँ तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यूपीएससी के, उसको हमेशा सॉल्व करते रहना मॉक टेस्ट में, और ना ही सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बट जो एसोसिएटेड एग्जाम्स होते हैं जो यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। प्राइमरीली एक तो होता है सीडीएस और दूसरा है सीएपीएफ। ये दो एग्जामिनेशन के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, ये भी लगभग कुछ हद तक सिविल सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम्स के तरह ही होते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर of Indian Forest Service or Civil Service Examination prelims exam, you should also refer to previous year questions of CDS and CAPF examination and try to solve them. ये तो होगी प्रीलिम्स की बात। फिर हम जब जाते हैं मेंस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब प्रीलिम्स तो कॉमन था, सिविल सर्विस एग्जाम और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, लेकिन अभी मेंस में हमारा अलग हो जाता है। ये मेंस में क्या होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, आपका एक पेपर होता है जीके का, दैट इज कॉल्ड एज जनरल नॉलेज, वो होता है 300 मार्क का। एक होता है इंग्लिश का पेपर, दैट इज ऑल्सो 300 मार्क्स। देन यू हैव टू चूज टू ऑप्शनल्स। सिंस इट इज अ साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विस, सो ह्यूमैनिटीज और आर्ट बैकग्राउंड के जो ग्रेजुएट्स है, दे आर नॉट अलाउड टू टेक दिस एग्जाम। ओनली साइंस ग्रेजुएट आर अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आप जब देखोगे तो ऑप्शनल्स भी उसी तरह के हैं, साइंटिफिक, साइंस बेस्ड और इंजीनियरिंग बेस्ड। जैसे मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी, etc. You won't find history because it is a social science. So along with GK and English, you have two optionals paper, 400 marks each. So total mains marks is 1400 marks. And then you have 300 marks personality test, that is interview. तो हम जैसे बात करते हैं मेंस में, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट जीके, जनरल नॉलेज, जो 300 मार्क का है।
अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सिलेबस इसका थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। ऐसे 5 सेक्शन होते हैं। अराउंड 10 मार्क या 15 मार्क के क्वेश्चन आता है इसमें। टोटल 300 मार्क का क्वेश्चन। सो अगर आप जैसे मैं तो बोलूँगा जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो सिविल सर्विस के लिए, वो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। आई डिड रेफर विजन्स नोट्स इसके लिए, जो आता है मंथली रिवीजन का मैगजीन। आई रेफर टू दैट, and along with that I did make my notes based on newspapers. So जीके में ये होता हो गया आपका। और फिर देन इंग्लिश में इट इज मोर फोकस्ड अपॉन ग्रामर एंड एसे। So grammar you need not go for that. People do suggest, some people do suggest, रेनान मार्टिन बुक आती है सीबीएसई की 10th की। So if you want you can read it, but personally I would say not that required. What you can smartly do is take the question papers, previous question papers of English of Indian Forest Service मेंस। उसमें जो ग्रामर सेक्शन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे होता है कि मेक इट एक्टिव, मेक इट अ पैसिव, और रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू। तो ये क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कीजिए, देन गो ऑन यूट्यूब एंड फाइंड सर्च फॉर द वीडियोस ऑफ सच क्वेश्चंस। सो हार्डली 2-3 मिनट की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे फॉर ऑल सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन फॉर इंग्लिश ग्रामर। उसको आप देख लीजिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छे ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, and then you can smartly use your time to gain maximum marks in English. अच्छा, उसमें बाकी होता है ऐसे एंड प्रेसी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग एंड +1 रिपोर्ट। So for report essay, for report and letter, stick to the format which has been given by the CBSE. आप recent CBSE format जो भी है इसका, वो आप डाउनलोड कर लीजिए एंड stick to that. एंड देन प्रेसे जैसे हम इसके पहले लिखते आ रहे हैं स्कूल कॉलेज में, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं या कुछ वर्ड्स कम कर देते हैं एंड देन वी ट्राई टू maintain it in 1/3 of the given number of words. So you should not do this in Indian Forest Service mains for pressure writing. What you have to do is you have to show the crux of that given paragraph and deduce the main concept or main things or main content of that paragraph and write it in your own words. But yeah, it should be 1/3 of the given paragraph. So उसके लिए क्या करना है, वी शुड रफ में जो पीछे पेजेस होते हैं, रफ में यू शुड प्रैक्टिस प्रेशर राइटिंग। प्रैक्टिस इन द सेंस इन द एग्जामिनेशन राइट वंस द प्रेसे एंड देन आउट ऑफ दैट अगर और उसको थोड़ा कम करके बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्रेसे उसको अंडरस्टैंड करके लिखना है। राइट इट इन योर 1/3 वर्ड। इसके लिए भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंस के लिए, so that you can manage the time and also get a good marks in Bresse. And then final component is essay in English. So in English, essay writing is simple. Topics are quite simple. And again, I would say don't put too much of efforts in essay writing. Stick to the basic things that write a very simple essay. Use very simple words, short sentences, so that you could commit very less mistakes in the essay. If you are doing very less mistakes in the essay, overall आपका marks essay में बढ़ जाएगा. So try to be as simple as small simple sentences essay as possible. Actually strategy जो है essay की श्रेयस श्रीवास्तव सर ने बताया था, who is Indian Forest Service officer of 2021 batch. फिर हम आते हैं ऑप्शनल पे, जैसे मेरे 2 ऑप्शनल जो लेने पड़ते हैं। I chose the geology and forestry इसमें। So for geology, I would suggest if you have time and resources, you can join some classes. क्योंकि highly technical subject है ये, it's a bit difficult to understand
the terminologies given in this optional. So अगर आपके पास टाइम है, रिसोर्सेस है, you can join the classes. But I did a self study. So but आपके लिए आपको इसके लिए थोड़ा बुक्स काफी रेफर करने पड़ेंगे. Like for every optional there are two papers, paper 1, paper 2, and every paper has like 6 units. So total 12 units. So if you want, you can go for reading books for every unit. But due to time crunch, surely you may not, you would not like to read every book for every unit. So what you can do is they're like for geomorphology in the unit 1, you should focus on the geography notes or geography NCRTs which you have or which you study for civil service examination. For other topics, surely I will suggest कि आप book refer करना चाहिए. Like for paleontology, you can read the Jain and Anantharaman book. Then for Indian stratigraphy, you go for Ravindra Kumar sir book. Then mineralogy in paper 2, go for Rutile. And for petrology stuff, you can refer to Tulanes University, उसके notes that are available on the internet. And for other topics and other concepts, you can read you can refer to the Google, which is the best source for the other stuffs. Then when you come to the forestry optional, you can one book which I think is sufficient or not sufficient but necessary. I would say that Manikandan. That will solve around like 70-75% of the syllabus. It covers nicely. For remaining 20-25%, you can again go for internet. A few people have suggested that Hornbill class is also good. So if you want, you can join the classes of Hornbill for forestry optional. I would suggest for scoring good marks in optional for forest service. Again, here as well, focus on conceptual clarity, which should reflect in your answers. Other than that, otherwise you won't get good marks in optionals because it is technical service. These are technical optionals, and clarity of the concepts is highly recommended and required to get good marks. So if you are clear with these concepts and you have done multiple revision along with the mock practice of mains, surely you can score good number of marks. And to add to these marks, से मैंने भी किया था कि try to draw diagrams in your answers. Like there is thumb rule. People say that every 5 marker you should have one diagram ready. So like for 10 markers you should go for 2 diagrams, and for 15 markers you can go for 3 diagrams. And it does help in making a good impression to the examiner, and also showcasing your skills that you can portray your thoughts through diagrams along with the content writing. मैंने एक्चुअली कलर पेंसिल्स भी यूज किया था एंड विच इज अलाउड इन एग्जामिनेशन, बट डोंट यूज द रेड कलर. Apart from that, you can use any color in examination to show different types of rocks, stratigraphies in forestry, showing the different types of trees, etc., or biogeography. So this was my strategy. Be brief to score good marks in mains. So we discuss about prelims and we discuss about mains. Then third stage is personality test. It is rightly called as personality test. आपके personality को वो test करता है. And surely I have given like total 3 civil service interviews, 1 CAPF interview, and 2 forest service interviews. So surely हर interview में मैं marks बढ़े हैं मेरे. I scored very bad, very poor in my first interview of civil services. But final interview था forest का. Decent marks मेरे आए थे 175. So surely it's a personality test which test your personality.
Again, just like your prelims and mains, you should also practice for personality test. आप कुछ ज़्यादा शायद आपके पर्सनैलिटी में चेंज ना कर पाए आफ्टर द मेंस रिजल्ट, बट श्योरली आपके जो इश्यूज़ है और आपके जो लिमिटेशंस है पर्सनैलिटी के, नेगेटिव थिंग्स है, उसको आप डिस्प्ले ना करें और आपकी जो पॉजिटिव चीज़ है, उसमें ही फोकस करें, ताकि एक ओवरऑल डिसेंट पर्सनैलिटी आप उनके सामने ला पाएँ, बोर्ड के सामने। सो फॉर दैट जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट में क्वेश्चन श्योरली आपके बेसिस पे ही आएँगे। जैसे आपका तहसील हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट, देन आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, आपके हॉबीज़, आपके ऑप्शनल पेपर्स, आपकी लाइफ जर्नी, आपके डिसीजंस, जैसे आपने व्हाई डिड यू चूज़ इन अ फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम? सो सच क्वेश्चंस विल कम, एंड फॉर दिस आई विल सजेस्ट कि एक क्वेश्चनियर बना लीजिए कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर मी। आप एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसको डाफ DAF डाफ बोलते हैं, उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चंस बना लीजिए। डाफ में आपका ऑलमोस्ट सब होता है, इट्स लाइक अ जन्म कुंडली टाइप, आपका होम टाउन, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, हॉबीज, ये सब होता है उसमें। सो बेस्ड ऑन दैट डाफ आप एक क्वेश्चनियर बना लीजिए, लाइक 300-400 क्वेश्चंस का, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर हाउ डू यू आंसर द क्वेश्चंस। तो ना पर्सनल टेस्ट में आपके बोथ आपका कंटेंट एंड हाउ यू both will. So verbal, non-verbal communication both becomes important in personality test. So इसलिए मैं बोला हूँ कि you should practice in front of mirror. तो आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने में आप मिरर प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिलेगा, एंड ट्राई टू रिफाइन योर आंसर्स एवरी टाइम यू टेक अ मॉक इंटरव्यू। वो रिफाइनमेंट लाओ, कन्फाइन करो आंसर, ट्राई टू बी वेरी कंसाइज एंड प्रिसाइज इन गिविंग आंसर्स इन पर्सनैलिटी टेस्ट, and again be bold and be confident while giving the answers. These are some few tips which will help you in getting good marks in personality test. Along with that, surely you can refine based on the suggestions given by the uh, boards or the institutions which take the mock exams, mock personality interviews. जैसे आप कुछ बताना चाहूँगा, जैसे मेरा पॉजिटिव्स क्या रहे हैं ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। वन वाज दैट माय गोल वाज वेरी क्लियर कि मुझे करना क्या है, किस सेक्टर में मुझे जाना है। सो गवर्नमेंट सेक्टर वाज फिक्स्ड, एंड सो आई चोज, दैट इज व्हाई आई चोज यूपीएससी एज अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट। आपके गोल क्लियर होने चाहिए, दैट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एंड व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मीन्स यू थ्रू व्हिच यू वांट टू अचीव दोज गोल्स। और एग्जामिनेशन ये ऐसे यूपीएससी के, यार इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर बिकॉज ऑफ द शेयर कॉम्पिटिशन। लाइक फॉर फॉरेस्ट सर्विस 1 से 1.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर सिविल सर्विस इट इज अराउंड 1 मिलियन फॉर्म्स भरते हैं लोग। तो सक्सेस रेशो, सक्सेस काफ़ी कम हो जाता, सक्सेस परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है, लाइक 0.01% इज द सक्सेस परसेंटेज of aspirant who clears the exam. That is why you should be ready to do a lot of hard work. Along with that, you should be focused. और आज वो जो देखना नहीं है वो तो ठीक है, बट ऐसा भी ना हो कि सामने बुक है और दिमाग में कुछ और चल रहा है। सो उसके लिए आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसे दूर रखिए। लड़ाई झगड़ा इससे कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में, उनसे दूर रहिए। लगता है आपको कि डोंट टेक फाइट्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, हंस के उस बंदे से या उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर गोल। आफ्टर दैट जो आपको करना है दैट यू कैन डू, बट फॉर टाइम बिंग डोंट वेस्ट योर टाइम इन पिकिंग अप स्मॉल फाइट्स एंड ऑल। लाइब्रेरी में कौन आ रहा है, लाइब्रेरी में कौन जा रहा है, कौन कितना बैठ रहा है, यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट। घर पे क्या चल रहा है, फ्रेंड्स कौन क्या कर रहा है, किसकी शादी हो गई, कौन कौन प्राइवेट जॉब में कितना कमा रहा है, कौन फॉरेन घूम रहा है, अगेन ये आपकी चीज़ें
शुड नॉट बॉदर यू। इनसे दूर रहिए तो ताकि आपका फोकस पढ़ाई में ज़्यादा बढ़े। ट्राई टू बी विद द पीपल हु आर पॉजिटिव इन देयर लाइफ। अगर आप ऐसे सर्कल, छोटा सर्कल बनाते हो फ्रेंड्स का, जो आर दोज आर पॉजिटिव इन देयर लाइफ, ये आपको हेल्प करता है डिप्रेशन सिचुएशन में ना जाने से, या उसमें चले गए हो तो उससे बाहर निकलने में। और हमेशा आपको बूस्ट मिलता रहेगा कि हाँ, मैं ज़्यादा पढूँ, अच्छा पढूँ और अच्छे मार्क्स लाऊँ। सो आपकी कंपनी, आपका फ्रेंड सर्कल छोटा रखिए बट अच्छा रखिए, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हो। थर्ड थिंग इज़ दैट बी रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म। अगर आपके दोस्त, आपके जो अच्छे दोस्त हैं, जिन पे आप भरोसा करते हो, आपके टीचर्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, पेरेंट्स, अगर वो आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो श्योरली यू कैन बी ओपन टू दैट। कि जैसे मेरे दोस्त बताया कि यार यशवंत, तू पढ़ता काफ़ी है बट यू आर लाइक वेस्टिंग योर टाइम ऑन थिंग्स विच शुड नॉट बी स्टडीड। तो लाइक मैं क्लास के नोट्स लेता था और लाइक कवर टू कवर उसको पढ़ता था, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे मैंने पहले बताया था, सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ये आपकी गाइडिंग लाइट होना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है। सो बी ओपन टू सजेशंस। और हम वैसे बात किए थे कि मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कीजिए, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पे काम कीजिए। अनलेस यू डू दिस थिंग्स, यू वोंट इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। आप वही रह जाओगे और आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएंगे। सो आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स और उस पे काम कीजिए। एंड परसिवरेंस, यस, इट रिक्वायर्स in exams like this, especially in civil service and in forest service, जहाँ कंपटीशन काफ़ी हाई है। So surely perseverance आपका होना चाहिए to get success in this examination. कुछ लोगों के इससे हिस्से में फेलियर आएगा, मे बी प्रीलिम्स, मेंस या फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम ना हो। तो उस सिचुएशन में आप खुद को संभालें, आपका जो गोल है उसको याद रखें, आपने ये पाथ या ये एग्ज़ाम क्यों चूज़ किया था, इसको ध्यान में रखें। और आप इस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, ये ध्यान में रख के फिर से आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए। और इसके दौरान खुद को मोटिवेट करते रहिए। अगर लगता है आपको कि आप काफ़ी स्ट्रेस में हो, श्योरली यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज फॉर अ कपल ऑफ डेज। इवन इफ यू वांट, यू कैन डू थिंग्स लाइक मेडिटेशन, and sometimes few things, small things like taking a walk. For me, taking a walk or listening to music were quite useful to get out of the stress or fear of failure. एंड तीसरी चीज़ थी यार, कुछ मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे थे, तो उनके साथ ही मैं रहता था एंड दे यूज्ड टू सपोर्ट मी। कुछ लोग तो जल्दी सिलेक्ट हो गए थे मेरे साथ जो थे, तो दे यूज्ड टू मोटिवेट मी कि यार यशवंत, चलो तुम्हारा हो जाएगा इस बार, तुम काफ़ी अच्छे मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो उनके उनका पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे काफ़ी हेल्प किया मेरे फेलियर्स को ओवरकम करने के लिए। और दूसरा था, मैं गलतियों से सीखता गया और इम्प्रूव करता गया। तो हार्ड वर्क, तो उसी सा when you identify and improve your mistakes and you work hard, your hard work becomes your smart work, because you are focusing on things which are required to clear this exam. And people, you do give you the mantra that focus on smart work and not hard work. For me, smart work is this: identifying your mistakes, working on those mistakes to improve that. मिस्टेक्स, जैसे मेरा एक मेजर मिस्टेक मेरा रहा है ड्यूरिंग प्रिपरेशन इज, जैसे मैं बताया आपको काफ़ी बार, आई डिड फोकस ऑन दैट बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स पढ़ो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये मिस्टेक किया। आई डिड जॉइन जीएस एंड ऑप्शनल क्लास ड्यूरिंग इन 2013, और बिना कुछ बेसिक्स पढ़े मैं क्लास ज्वाइन कर लिया था। सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट बेसिक एनसीईआरटी पढ़ के अगर आपको क्लास लगाना है,
तो बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ के आप जाओ क्लास में, वो टॉपिक जो है उसका पहले पढ़ के जाओ, ताकि आपको काफ़ी क्लैरिटी, आपका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा बढ़ जाए। और जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, फॉर मी नाउ आई retrospectively I do say that joining a coaching class is not at all required, especially in today's time when you have a lot of resources available on internet and a lot of social media, जैसे YouTube हो गया, तो आपको काफ़ी सारा वहाँ पे मटेरियल, स्ट्रैटेजीज टॉपर्स की मिल जाती है। गूगल पे आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है। सो आज के दिन में आई वोंट से कि क्लासेस आर रिक्वायर्ड, बट श्योरली आई मीन आपको ज्वाइन करना है, श्योरली क्लासेस, इट्स अप टू यू, इट्स योर कॉल, इट्स योर डिसीजन, बट फॉर मी आई वुड से नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आप एक कर सकते हो कि यू कैन जॉइन मॉड्यूल्स, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, you have read some basic books like NCERTs and some notes, और कुछ सब्जेक्ट्स में आपको उतना क्लैरिटी नहीं आ रही, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, से सपोज पॉलिटी, से सपोज इकोनॉमिक्स, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जॉइन मॉड्यूल्स। कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ कोचिंग क्लासेस आपको ये मॉड्यूल्स देते हैं। सो रादर देन जॉइनिंग एंटायर जीएस बैच, यू कैन जॉइन दो स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो इस सबका पैसा, समय बच जाएगा, और आपको आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उस सब्जेक्ट में। सो यही है मंत्रा, तो ये है मेरा कि यार सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये ध्यान में रखें, इसको पढ़े, हमें बार बार सामने रख रख मैं तो बोलूँगा आपके स्टडी टेबल के सामने चिपका दे सिलेबस को, मैप के साथ सिलेबस को भी, जो वर्ल्ड मैप है, इंडिया का मैप है, प्लस सिलेबस, ताकि आप रेफर करते रहो कि अच्छा है मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एंड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन मार्केट में मिल जाएगा आपको जेरॉक्स शॉप पे, तो वो कंपाइलेशन आप ले लीजिए। और अलॉन्ग विथ सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस, गो फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ, उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर भी उठा लीजिए, एंड डू ट्राई सॉल्विंग दोज क्वेश्चन पेपर्स फॉर प्रीलिम्स। और जैसे मेंस आंसर राइटिंग है, मेंस आंसर राइटिंग जैसे हम बात की थी प्रीलिम्स की, अगर न्यू फ्रेशर या बिगिनर्स है, he should focus for at least for 4 months or 3.5 months for prelim study. So उसके पहले you should be mains ready. So before starting the prelims exam or prelim study, you should be mains ready. So like for example आपका आप जैन में अगर prelims की पढ़ाई शुरू कर रहे हो, so before January you should be thorough with the main syllabus, along with at least one revision and along with the notes of that optional. अच्छा, नोट्स मेकिंग कब जरूरी है? जब आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस हो, एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट के, उस समय में मैं नोट्स बनाना इज रिकमेंडेड। जब आपके पास एक ही रिसोर्स हो, सो यू डिड नॉट गो फॉर मेकिंग नोट्स। एग्जाम्पल, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, you did not go for making notes out of Lakshmikant. You will end up making or writing another Lakshmikant. Similarly, for mains and forestry optional of Indian Forest Service, Manikand is a good book. So what you can do is you can add some pages of some topics or of some concepts which are you are not getting in that Manikandan book. बाकी आपको सब्जेक्ट्स का लग रहा है आपको कि आप मल्टीपल सोर्सेज यूज कर रहे हो, लाइक इकोनॉमिक्स, सो यू कैन मेक क्रिस्प नोट्स ऑफ दैट। ये नोट्स मेकिंग काफी काम में आते हैं, बिकॉज वॉट एवर यू रीड एंड वॉट यू राइट, it is easy to recall for longer duration of time, and also it becomes very easy to revise these short notes like few days before the exam, both prelims, mains, and also personality test. So here notes becomes important. अच्छा, notes making भी interesting ये है कि you will also refine your notes. जैसे आप फर्स्ट टाइम नोट्स बनाते हो, थोड़ा बड़े, थोड़ा बन जाते हैं, कंसाइज नहीं बन पाते, तो उसको थोड़ा और इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम जो बनाओगे आप, तो उसको कंसाइज नोट्स बनाइए। सो फॉर दिस व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर न्यू फ्रेशर्स और बिगिनर्स इज दैट जब भी आप एनसीईआरटी या कोई बुक पढ़ते हो फर्स्ट टाइम, डोंट डू मार्किंग विथ हाइलाइटर और पेन, डू इट विथ पेंसिल।
कि फर्स्ट टाइम पढ़ते हो आपको लगता है कि सभी इंपॉर्टेंट है एंड यू एंड अप कलरिंग और अंडरलाइनिंग एवरी वर्ड. सो फर्स्ट टाइम पेंसिल से उसको अंडरलाइन कीजिए. व्हेन यू गो फॉर फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रीडिंग देन यू कैन हाईलाइट और अंडरलाइन दोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स विथ पेन. और आपको लगता है कि आप मल्टीपल सोर्सेस उस सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हो देन यू कैन मेक नोट्स by compiling from all those sources for that subject. And again, same goes for current affairs, which plays very important role in all the stages, prelims, mains, and interview. I relied on Vision magazine, monthly magazine. तो अगर आपको भी लग रहा है कि आपका टाइम कम है पेपर पढ़ने के लिए तो श्योरली यू कैन गो फॉर विजन्स मंथली मैगजीन. काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है एंड रिलायबल है. तो आइदर मंथली और दैट ईयरली कंपैरिजन आता है. आइदर ऑफ दैट यू कैन गो फॉर दैट. तो अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हो सो जस्ट ओवरलुक करना है न्यूज़पेपर को. मे बी हिंदू और एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप पढ़ रहे हो फॉर इंग्लिश मीडियम गाइज. अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंग्लिश मीडियम में ही आती है मेंस. उसका बायलिंगुअल पेपर नहीं रहता है मेंस का. तो आपको इंग्लिश पढ़ा. फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि आप इसकी करंट अफेयर्स की. तो जैसे मैं बताया कि विजन एक है और न्यूज़पेपर आप जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो just to get to know what things are going on around you and what are the like important things. कभी कभी क्या आता है एक जैसे कुछ पिक्चर या फोटो आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट का न्यूज़पेपर में. जैसे कोई ट्राइबल का कोई इवेंट होता है, उनका कोई फेस्टिवल होता है, उसका कोई फोटो वोटो आ गया तो वो आप कहीं आपके करंट अफेयर नोट्स में मेंशन लिख लीजिए. क्योंकि ये करंट अफेयर का अगर पेपर में आया है तो शायद यूपीएससी भी इस पे इंटरेस्टेड होगा एंड ट्राइबल पे फिर क्वेश्चन ये आ सकता है. या जैसे कोई कभी कभी आता है कि जीआई टैग मिल गया किसी किसी एंटिटी को. सो वो शायद पेपर में आ जाता है. तो लाइक 15-20 मिनट्स में आपको पेपर में आपको चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी. अच्छा ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स या फिर मेंस के लिए, उसको फिर फट से लिख के रख लो. बट मेजरली आई रिलाइड ऑन दी विजन्स मैगजीन फॉर करंट अफेयर्स. हाँ, तो ये तो थे my journey of Indian Forest Service examination. And Abhi, if I talk briefly about the Indian Forest Service, जैसे मैंने बताया कि it is one of the 3 all India services. And इसका ट्रेनिंग होता है देहरादून में, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून. ट्रेनिंग होता है टोटल 16.5 months का. Along with this professional training, we have to undergo the foundation course at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, that is Labasna, in Mussoorie. So 3.5 months का फाउंडेशन कोर्स होता है मसूरी में, लबासना में. 16.5 months का प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है एंड 4 months वी हैव ऑन जॉब ट्रेनिंग. सो टोटल अराउंड 2 साल का वी हैव प्रोबेशन पीरियड. Unique thing about this Indian Forest Service is that you get to work or you are responsible for improving the quality of life of environment, forest, people, and also animals. So this is very unique opportunity which the service gives me. Along with that, the work-life balance is very good in this service. Uh, अगर आप surely if you see that future lies in all the policy making, it is revolving around environment and climate. So surely you have a very important role to play, not only in execution at the ground level, but also at the policy making at the higher levels. So surely this service gives you the opportunity. And हम हमारा कल ही कॉन्वोकेशन था and tomorrow our professional training of my batch, that is 2022 बैच इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कल खत्म हो रहा है. कल हमारा लास्ट डे है प्रोफेशनल ट्रेनिंग का and we will go to our cadres
for the on-job training of 4 months. Uh, this was from my side during my journey and preparation. And surely, if you have any doubts regarding this, you can reach out to me on my Instagram, the Yashwant underscore Ambulkar, and you can ask questions over there. And questions किसी के बारे में भी हो, पढ़ाई के बारे में भी हो या लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसके बारे में भी हो, सो यू कैन रीच आउट टू मी। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मेरा सोर्स क्या था मोटिवेशन का। जैसे मैंने बताया था कि माय फादर वाज इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट जॉब तो मुझे करना ही था। दूसरा ये था कि यार देयर वाज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड मी कि यार मुझे सब कुछ सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। So for that, after searching for all the available options, I finalized the UPSC exams through which I can serve a lot of people. And luckily, I could get through the Indian Forest Service. And surely now I'm ready, or I would like to serve people through this service. अच्छा, फिर पूछा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे एनालाइज करना चाहिए। See, I mean, previous year questions is like just like a guiding light for you कि what types of questions, जो framing होता है questions का, वो कैसा आ रहा है, कौन सी syllabus से questions ज़्यादा आ रहे हैं। So that is like a part which UPSC is also interested in. So ऐसे syllabus है, ऐसे part को आप you should give the priority in your study and in your revisions. And so this is the usefulness of the previous year question papers. So these previous year question papers you can analyze in this way to give you the idea ki how to use those question papers and which part of the syllabus is important for that. एक क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाना है। See, surely this examination is like it takes a complete a whole year of you in giving the exam, like prelims, mains, then personality test, और उसके एक साल पहले you are preparing. So like 2 years you are into this exam. So surely maintaining your consistency or focus is becomes difficult. So what you can do, that's just what I said. Right? First, define your goal. After defining your goal, अब इससे हटना नहीं है. Then decide the path which you want to take or you should take to clear the examination. जैसे हमने बताया गया, the guiding light is PYQs and the syllabus. Along with that, go for the topper stock. This will give you the guidelines how to study, what to study, from where to study. दूसरा ये होता है कि यू शुड नॉट बर्न योर सेल्फ आउट। कुछ लोग होते हैं कि आप 12-13 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, सो इट विल बर्न यू आउट फॉर इन एंटायर ईयर। सो व्हाट यू कैन डू, जो आपको ऑप्टिमम लेवल है पढ़ाई का, 5 घंटे 6 घंटे उतना करें और ट्राई कीजिए कि विद टाइम इसको थोड़ा बढ़ाए। विद टाइम, ना कि ड्रास्टिकली एकदम आप उसको बढ़ा दीजिए। आपका 5-6 घंटा अभी है, तो हो सकता है 1-2 महीने बाद उसको आप 7 घंटे पे ले आइए, 1-2 महीने और बाद उसको 8 घंटे पे ले आइए। सो 8 से 9 घंटे का रोज का पढ़ाई I think should be sufficient. That is focused study. तीसरा ये है कि identify the golden hour. Mostly, and also, I would say that the time after which you get up, that those 2 hours is golden hours for you. क्योंकि आप उस पर काफी अच्छा फोकस कर सकते हो and you can cover lot of syllabus in those 2 hours. And आप continuous sitting you can take in those two hours. आप 2 घंटा बिना कहीं हले एक जगह बैठ के आप पढ़ सकते हो। सो दैट गोल्डन आवर्स में आप कोई भी दूसरा एक्टिविटी ना करें, कोई भी आपका फ्रेंड्स आपका मीटअप ना रखे। यूज दैट गोल्डन आवर ओनली फॉर योर स्टडी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू कीप माई फोन ऑन साइलेंट मोड एंड आई वुड कीप द इट फेस डाउन, ताकि मुझे वो कभी ब्लिंकर्स विंकर्स भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। वो जो गोल्डन आवर है सवेरे उठने के बाद का 2 घंटा 2.5 घंटा, वो मैं फुल आई वुड यूटिलाइज। और सिमिलरली दैट
But such golden hour also comes in the evening. जब आप पढ़ के थक जाते हो, then you go out for a tea or you go out for a walk or to gym. आप जब वहाँ से बाहर वापस आते हो यू टू योर रूम, यू फ्रेशन अप, फिर आप फ्रेश होने के बाद फिर वो 1 1 घंटा कंटिन्यूसली यू कैन सिट फॉर योर स्टडी. सो ये 2 गोल्डन आवर हो गए, ये गोल्डन पीरियड हो गए जब जब आप लॉन्ग सिटिंग कर सकते हो इन अ डे. अलॉन्ग विद दैट आप फिर 40 मिनट्स या 50 मिनट्स का एक सिटिंग रख लीजिए, क्योंकि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन इसके ऊपर नहीं होगा. आफ्टर 40 50 मिनट्स आप थक जाते हो, आपका फोकस कम हो जाता है. सो टेक अ ब्रेक, से फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स. अब ब्रेक लेना है, इसमें यूट्यूब वगैरह नहीं देखना है, क्योंकि आप एक यूट्यूब में एक वीडियो चलाते हो, देन अल्टीमेटली यू आप उसमें 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर देते हो. सो टेक अ वॉक, गो अवे फ्रॉम योर स्टडी टेबल, थोड़ा वॉक कर लीजिए. यू कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक, टेक फ्रेश एयर, and then come back again to your study table. Then again study for 50 minutes, 40 minutes, and then again take a break. So apart from those golden hours जिसमें आप कंटिन्यूस 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ सकते हो, बीच बीच में फिर ये 40 50 मिनट्स का स्लॉट आएगा जिसमें आप फोकस्ड पढ़ाई कर रहे हो, अलॉन्ग विद देन आफ्टर दैट 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक. और अगर आप चाहते हो तो वीक में आप हाफ डे यू कैन टेक अ ब्रेक, और अ फुल डे यू कैन टेक अ ब्रेक, लाइक संडे हो गया, ये वीकेंड हो गया, सो दैट यू कैन रिचार्ज योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट वीक. तो आप एक, इससे पहले क्या करिए, आप एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे 6 महीने मुझे मेंस का पढ़ाई करना है, तो इतना सिलेबस है, और मुझे 6 महीने में 1 2 मॉक टेस्ट भी देना है, और एक रिवीजन भी करना है, और नोट्स बनाना है. तो मुझे कितना टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को करने के लिए, उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए. और उस और माइक्रो ज़्यादा मत बनाइए, लाइक हर घंटे में क्या करूँगा वो मत कीजिए. एक मैक्रो प्लान बना लीजिए कि मुझे एक वीक में इतना सिलेबस कवर करना है, या इतने सब्जेक्ट्स कवर करना है. सो ऐसा एक मैक्रो प्लान आप बना लीजिए वीकली, और उसको फॉलो कीजिए, और फिर उसके हिसाब से यू कैन टेक हाफ डे और फुल डे ब्रेक ऑन वीकेंड्स टू जस्ट रिचार्ज योर सेल्फ. सो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनाई रहेगी. हाँ, अलॉन्ग विद दैट, जैसे हम डिस्कस किए थे, जो भी नेगेटिव पर्सन्स है, आपके कुछ रिलेटिव्स भी नेगेटिव सोचते होंगे आपके बारे में, तो उनको थोड़ा दूर रखिए. एंड डोंट टेक अप सिली फाइट्स एंड ऑल. हंस के उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, और आपके अच्छे दोस्त दोस्त लोग हैं, उनके साथ ही रहिए हमेशा. सो दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल श्योरली हेल्प यू in maintaining your consistency, perseverance, and your focused approach. And surely it will keep you positive during your studies, which will surely take it from to surely help you in boosting your focus and your performance. जैसे किसी ने पूछा है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है एग्जाम में, सो मैं किस पे रिलाई करूँ. तो श्योरली आई मीन पीपल जोकिंगली डू से दैट यूपीएससी में जो यू होता है इट स्टैंड्स फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी. एंड श्योरली आई मीन कुछ समय बाद जब काफ़ी एस्पिरेंट दे मास्टर दी strategy of solving the prelims questions or attempting the mains answer, तो उस हिसाब से यूपीएससी भी अपना स्ट्रैटेजी चेंज करता है. जब आपने देखा ही होगा कि मेंस के क्वेश्चंस उन्होंने बढ़ा लिए, फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा चेंज हो गया, जैसे ऑप्शंस में पूछते हैं अभी ओनली वन वगैरह. तो यूपीएससी भी इवॉल्व कर रहा है अलॉन्ग विद द एस्पिरेंट्स. सो श्योरली इन सम वे इट बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल, बट कोर हमेशा यूपीएससी एग्जाम का सेम ही है राइट फ्रॉम स्टार्ट, कि बेसिक बेसिक जो आपका कंसेप्ट है उस पर आपका कमांड होना. और उसके लिए आप रिलाय करना चाहते हो तो यू शुड ऑलवेज गो ऑन दी सोर्सेज लाइक एनसीईआरटी. एनसीईआरटी पे ही फोकस करो आप. अलॉन्ग विद दैट गूगल पे जो आप सर्च करो वो, ये दो चीज़ें आई थिंक यू कैन रिलाई अपॉन. अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू फील लाइक कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही इसके बावजूद भी, देन यू कैन जॉइन सम कोचिंग क्लासेस और सम मॉड्यूल्स फॉर दैट. But if you are thorough with the previous year question papers, syllabus, and NCERT books and the basic books,
I don't think you need to go for any coaching classes. And third thing is for optionals, rely only on standard books. जो भी आपका ऑप्शन हो, सिविल्स का हो या फॉरेस्ट का ऑप्शन हो, गो फोकस ऑन द स्टैंडर्ड बुक्स, कि उसमें साइंटिफिक रिसर्च स्टडी के बाद ही वो बुक्स लिखते हैं. सो यू कैन रिलाई ऑन दोज बुक्स. और अगर हमने बात किया जैसे इफ यू हैव मल्टीपल सोर्सेज फॉर एनी सब्जेक्ट, आई वुड रिकमेंड गो फॉर नोट्स मेकिंग. देन दैट नोट्स बिकम योर थिंग विच यू कैन रिलाई अपॉन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज. किसी ने बात किया ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है. सी फॉर यूपीएससी आपको स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज फॉर्म नंबर 9 आपको लेना पड़ेगा. जहाँ से भी आप सर्टिफिकेट निकालते हो स्टेट का, वहां से आपको फॉर्म नंबर 9 उनको बोलना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है, जो सिर्फ 1 साल के लिए रहता है वैलिड. और जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है उससे पहले की डेट का होना आपका सर्टिफिकेट. सो जो अगले साल दे रहे एग्जाम वो ध्यान में रखे कि नोटिफिकेशन डेट जो है यूपीएससी प्रीलिम्स का, उस डेट के पहले के डेट का आपको ओबीसी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए निकलता है वो आपके पास होना जरूरी है. किसी ने पूछा है कि आई एम चूजिंग आईएफएस बिकॉज ऑफ इट डिसेंट सैलरी. सी फ्रेंड, it may be your motivation, and I think whatever is your motivation in joining any service or choosing any field, it's up to you. But then again, only for salary, if you're coming to this service, salary compared to private jobs is a bit less in all the government jobs. Even for all India services, salary compared to private sector is low. So if you are only focusing on salary or wealth creation, surely it's through legal means. Uh, I will say कि you can focus on private jobs as well. सी अगर जैसे कोई बोल रहा है कि मैंने should I go for general as I don't have any updated right now? सी फ्रेंड यू कैन आप अभी सर्टिफिकेट बना लीजिए ना. अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हो तो सर्टिफिकेट आप अभी बना लीजिए. तो जो नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन आएगा शायद फेब में आएगा नोटिफिकेशन फॉर 2025 एग्जाम, तो श्योरली उसके पहले का ही आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा. देन you can submit that certificate. You did not go for choosing general as your community. You can choose OBC as a community. तो आप अभी सर्टिफिकेट बना लीजिए फॉर नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम. और वो फाइनेंशियल ईयर का रहता है वैलिड है ना, फ्रॉम मार्च एंड टू अप्रैल नेक्स्ट. हाँ. Sure, if you are focusing salary plus work-life balance, if you want to come into Indian Forest Service, surely, please do give attempt. Along with that, you will also enjoy the perks or rather satisfaction of working for the people. And not only for the people, for the voiceless, that is animal. And surely you will play a very important role in policy making. So surely if you want to get into a service which you give a decent salary, work-life balance, Indian Forest Service you can think about. Share your service in BSF. See, I got into BSF 2017 की एग्जाम थी वो, असिस्टेंट कमांडेंट की सीएपीएफ की एग्जाम थी वो. एंड आई गॉट इनटू दैट. एंड अनफॉर्चुनेटली उस समय बीएसएफ का ज्वाइनिंग काफ़ी जल्दी आ गया था और मुझे और एक अटेम्प्ट देना था अगले साल सिविल सर्विस का और फॉरेस्ट का. बट बीएसएफ वालों ने बोला कि यू कैनॉट टेक एक्सटेंशन, either you take the service or you have to leave the service. So unfortunately I had to quit the service, or rather I did not join the service, so I don't have experience in BSF. किसी ने पूछा टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाने चाहिए. हाँ बिल्कुल,
अगर लगता है कि जैसे टेस्ट सीरीज में आपको कुछ नया कुछ सीखने मिलता है, कुछ नया आपको पॉइंट मिलता है, कुछ कंसेप्ट मिलता है, आपके मिस्टेक्स मिलते हैं, तो श्योरली वो आप आपके नोट्स में डाल दीजिए। श्योरली आपको वो काफ़ी काम में आएँगे। तो मैं भी प्रीलिम्स के मॉक्स के पेपर सॉल्व करता था, तो उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के स्पेसिफिकली ऐसे होते थे, जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था मेरे किसी मैगज़ीन या किसी न्यूज़पेपर में। तो फिर मैं उसको लिख लेता था मेरे नोट्स में। तो श्योरली मेकिंग नोट्स फ्रॉम टेस्ट सीरीज इज़ अ गुड आइडिया। आई एम गिविंग 2024 एग्ज़ाम सीएपीएफ एग्ज़ाम, गुड। तो जो भी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट आपको हेल्प चाहिए मेंस में या प्रीलिम्स में, प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। We can sit and talk on getting good marks in prelims and getting good marks in mains of assistant commandant exam. Someone is saying, why did you select IFS and not IS? See, these both exams are different. Only prelims is common. IS you can get through civil services examination, CSE, and IFS through IFS exam. So for my last two attempts, I only focused on enough forest service exam. Because compared to other services, I found that this is equally good service, which is giving me very good opportunity to serve the people along with nature and animal, sorry, the wildlife. So that is why I focused upon Indian Forest Service. ऐसा नहीं कि IAS मुझे जाना नहीं था. Surely I wanted to go. मेरे अटेम्प्ट भी दिए मैंने सिल्स में. इंटरव्यू तक गया था बट somehow I could not clear or get into the final merit list. Someone is asking, are you in forest? Yeah, I am in forest service, Indian Forest Service. एक क्वेश्चन रह गया था जिस मैंने बोला आई विल टेक इट इन लास्ट, दैट शुड यू प्लान फॉर प्लान बी? सी श्योरली आई मीन समवेयर इन द माइंड जैसे हम बात किए थे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टफ एग्जाम एंड ऑल्सो competition is very high, and because of which it may become difficult for some to clear the exam in first attempt or some multiple attempts, or some a few may not clear at all. ऐसा possibility भी है. So surely one should have plan B in his or her life. And also, I would suggest to all the aspirants and all the people who are engaged in this exam, UPSC exams, यार एक और दो अटेम्प्ट के बाद surely you should start focusing on your plan B. क्योंकि आप साइकिल में फंस जाते हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, and there is no going out. And after certain age limit, you are not eligible to take other exams. यूपीएससी का तो 33 एज लिमिट है for OBC and 30 for open. But for other exams, for open category, it's like 25, 28. So you become disqualified to take other exams. So I would suggest that after one or two attempts, after at least two attempts, you should focus on the plan B. So simultaneously, if you can do both UPSC preparation and plan B, you should do. Otherwise, what you can do is you can take a rest, a gap of like 7 months. Focus on your plan B, get clear those exams of plan B exams, then come back again to your plan A, that is UPSC exams. इससे क्या होगा ना कि 2-3 साल के बाद अगर आपको जॉब मिल जाता है, दूसरा जॉब, तो आपके घर वाले भी चिंतित नहीं रहेंगे कि यार ये बंदा सिर्फ पढ़ रहा है और कुछ लाइफ में कमा नहीं रहा है. आपको भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मेरे हाथ में एटलीस्ट एक दूसरा जॉब तो है. So based on that, then you can prepare again or resume your preparation for UPSC exams. So surely plan B one should have in his or her life. And after at least two attempts, one should focus on the plan B. Recently, जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बात किया था कि लॉट ऑफ पीपल आर स्टक इन दिस यूपीएससी एग्जाम्स एंड देयर यूथ इज गेटिंग वेस्टेड. सो श्योरली उन्होंने भी इसी बात पे फोकस किया होगा. And you should also take a call during your preparation after one or two attempts. If you're feeling that यार मेरा prelims भी clear नहीं हो रहा या मेरे मेंस में marks नहीं बढ़ रहे after two attempts, so surely take a call, take a break of one attempt or 5-6 months, focus on plan B and come back again if you want for UPSC exams. Okay.
आपका थोड़ा सिचुएशन जो आप बात कर रहे हैं कि मैं सीएपीएफ एग्जाम 24 का दे रहे हैं और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट तैयार नहीं है, अ बिट टफ सिचुएशन। बट अगर आपने एग्जाम दे दिया है, फॉर्म भर दिया है, प्रीलिम्स दे दिया होगा या देने वाले हो, तो आप अभी एग्जाम क्लियर कर लीजिए। और जब भी आप फिर इंटरव्यू के लिए जाए सीएपीएफ का, तब आप उनको ये बातें बता दीजिए कि ये इशू है। एंड होपफुली यूपीएससी विल टेक अ कॉल इन योर फेवर। थोड़ा लिलेंट होता है यूपीएससी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको टाइम देते हो कि आप बाद में फिर सबमिट कर सकते हो सर्टिफिकेट्स नया बना के। So I think it should not be an issue in your case, but I cannot guarantee it. It's up to UPSC to decide on your certificate. But अगर आपने अभी आप एग्जाम फेज में हो, so focus on your exam. इसने बोला कि I'm very poor and I feel comfortable only with UPSC. Should I only focus on UPSC? See, a poor, rich, I mean these things not matter much in preparation because भले ही पुअर हो आप, बट यू कैन अफोर्ड यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल। डाटा काफ़ी सस्ता है अभी तो। एंड अगर लगता है आपको कि आप आपके रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, श्योरली आपकी सोसाइटी में कुछ ना कुछ फिलंथ्रोपिस्ट आपको मिल ही जाएंगे जो आपको फाइनेंस कर देंगे आपकी पढ़ाई। जैसे बुक्स लेना होगा या एग्ज़ाम के लिए जाने के लिए खर्चा, ये छोटे मोटे खर्चे तो आपको आपके आसपास के फिलंथ्रोपिस्ट उठा लेंगे। So being poor is not an issue in this examination. जैसे आपने बोला कि you are only focusing on UPSC. This my suggestion for Plan B was not only for poor or rich. It was for everyone. अगर आप poor हो, आप rich हो, कोई भी हो, after 2 attempts, you should start thinking about Plan B. क्योंकि आप अगर 2 अटेम्प्ट दे चुके हो तो आप कम से कम 3 साल आपके दे चुके हो यूपीएससी में। और 3 साल का गैप अगर आप जॉब मार्केट में सोचो तो आप कहीं ना कहीं लैग करोगे कंपेयर टू अदर एक्सपीरियंस गाय। तो ऑलरेडी आप 3 साल पीछे चले जाओगे अदर कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स इन जॉब मार्केट। इसलिए मैंने बोला कि आफ्टर 3 years यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ प्लान बी। So I think I have taken all the questions. If any questions you have, you can post. Okay, and UPSC, yes, I do think कि फ्री एंड फेयर होता है एग्जामिनेशन यूपीएससी का कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। थोड़ा डिले होता है कभी कभी, थोड़ा करप्शन का इशू होता है कुछ एग्जाम्स में। तो हाँ, आपका एफर्ट्स वेस्ट हो सकता है बाकी एग्जाम्स में, बट ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम्स ही ऐसे हैं। जैसे हमारा एमपीएससी जो है, महाराष्ट्र एमपीएससी, उसका एग्जाम्स काफ़ी रेगुलरली होता है विदाउट फेल, एंड दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद मार्क्स एंड ऑल। सो आपके स्टेट में जो भी एग्जाम्स होंगे, आप लग रहा है कि यू कैन क्लियर इट, सो आप उससे फोकस कीजिए। या आपका कोई बिजनेस प्लान है, वी कैन वर्क ऑन सेटअपिंग अप दैट प्लान, उसमें आप काम कर सकते हो। So surely plan B we should have at least after two failed attempts. इन सजेशन फॉर वर्किंग कैंडिडेट, हाँ वर्किंग कैंडिडेट का ये है कि आपको सी अगेन देर मे बी अ मिथ दैट यू नीड टू गो फॉर फुल फ्लेज प्रिपरेशन 24 hours यू शुड बी इन यूपीएससी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तब भी आप ड्यूरिंग योर वर्किंग जॉब यू कैन डू योर यूपीएससी प्रिपरेशन। बट उसके लिए क्या करना चाहिए पड़ेगा आपको कि यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको आप टाइम कब निकाल पाते हो। एक तो अर्ली मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू योर जॉब यू कैन टेक 2-3 घंटा आप निकाल पाओ, एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द जॉब अगर आप 1-2 घंटा निकाल पाओ, सो दैट इज गुड इनफ अकॉर्डिंग टू मी to prepare for UPSC exams. Along with that, make full use of the weekends.
तो जो भी वीकेंड्स है, जो भी छुट्टियाँ है, उसका फुल यूज़ कीजिए. Go like for 12 to 14 hours of study in those weekends, in those holidays, so that you can make up for the lost hours in the weekdays. तो 4-5 घंटा वीकडेज में रोज, अलॉन्ग विद दैट वीकेंड में थोड़ा 12-14 घंटा आप पढ़िए. तो अलॉन्ग विद द जॉब यू कैन प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स. एंड श्योरली आप ड्यूरिंग योर जॉब आपके जो सीनियर है, आपके कलीग्स है, उनसे एक हेल्दी रिलेशन बना के रखिए, ताकि वो आपको ऐसा कोई जॉब या कोई ऐसा कोई टास्क ना दे जो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो, है ना. सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज. तो इस कारण से आपको जो रिलेशंस है विथ योर कलीग्स एंड योर स्पेशली विथ योर सीनियर्स, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ताकि आप पढ़ाई भी कर सको और आपका जॉब भी कर सको. और जब भी आपको लगे 1 महीना पहले एग्जाम के, जैसे प्रीलिम्स है, या 2-3 महीना पहले मेंस का, छुट्टियाँ ले लीजिए. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि 1 महीना पहले प्रीलिम्स के और 2 महीना पहले मेंस के टेक लीव फॉर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. तो इसलिए यहाँ भी आपका जो रिलेशन है विथ सीनियर्स काफ़ी काम आएंगे. कोई बोल रहा है कि बुकिया इंग्लिश आई कैनॉट अंडरस्टैंड. सी, ऐसा तो नहीं किया, आपको कुछ समझेगा ही नहीं. कुछ कुछ ऑथर्स होते हैं कि दे ट्राई टू flaunt, I mean, their use of heavy words or flowery language. So surely you have to do, थोड़ा आपको एफर्ट लेने पड़ेंगे. आपको एक डिक्शनरी साइड में रखना पड़ेगा, और रादर गूगल रखना पड़ेगा, कि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको समझने में तकलीफ हो रही है आपको तो. एंड श्योरली विथ सम टाइम आपका वर्ड बैंक इतना तैयार हो जाएगा आपके पास कि आप डिफ़िकल्ट इंग्लिश भी समझ पाओगे. तो बुक की हाँ इंग्लिश जो आप बोल रहे हो, आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, एंड विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. थोड़ा आप एफर्ट डालते हो, थोड़ा डिक्शनरी लेके बैठते हो कुछ दिन, कुछ महीना, तो बाद में आप श्योरली यू कैन रीड एनी बुक ऑफ इंग्लिश. आप चलो, अभी तो कोई क्वेश्चंस नहीं है. गुड इवनिंग सर, आई कैनॉट क्रैम ऑल द फैक्ट्स. ओके, इफ यू आर सेइंग फैक्ट्स इज क्रैमिंग फैक्ट्स इज एन इशू, तो जैसे आप बोल रहे कि आई कैनॉट क्रैम ऑल द फैक्ट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर अदर एग्जाम्स. तो ऐसा नहीं कि सारे जो बाकी एग्जाम्स है उसमें आपको रटना ही काफ़ी सारा है. कुछ एग्जाम्स ऐसे है कि आपको कम रटना पड़ेगा, आपका आउटपुट काफ़ी मिल जाएगा, जो कंसेप्ट क्लैरिटी के बेसिस पे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो. जैसे CAPF का हो गया, RBI के एग्जाम है, यू कैन ट्राई दैट. देन CDS इफ एज अलाउज यू. देन एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई का एग्जाम्स आता है, वो भी थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी पे होता है. हमारा जैसे हमारा स्टेट का PCSC का एग्जाम, दैट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स अलॉन्ग विथ सम मगिंग ऑफ फैक्ट्स. तो ऐसा नहीं कि बाकी एग्जाम सिर्फ फैक्ट्स ही है. यू कैन चूज, यू कैन थोड़ा रिसर्च कीजिए. सो अलॉन्ग विथ यूपीएससी बाकी एग्जाम्स अगर आप फोकस करना चाहे एज अ प्लान बी, यू कैन डू दैट. तो चलिए, आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस. शुड आई फिल अ फॉर्म एज जनरल कैटेगरी क्रिमिनल ईयर? तो लग रहा है कि आप सर्टिफिकेट इज एन इशू फॉर यू राइट नाउ, और आपको फॉर्म भरना है अभी CAPF का. सर्टिफिकेट नहीं है तो, अगर इफ यू आर एनी ओल्ड सर्टिफिकेट, तो वो आप भर दीजिए यूपीएससी OBC का. दैट यू कैन डू. अगर आपका सर्टिफिकेट है ही नहीं, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. देन यू कैन गो फॉर जनरल कैटेगरी से आप भर दीजिए. बट अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है OBC का, देन यू कैन फिल अप द फॉर्म थ्रू OBC सर्टिफिकेट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आप यू कैन गेट इन टच विथ ऑन इंस्टाग्राम, और श्योरली वी कैन रिज्यू ऑल द क्वेश्चन. हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का है. हाँ, तो जो लास्ट डेट है
फॉर्म भरने की सीएपीएफ की, तो अगर उसके पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट का निकाल पाओ तो निकाल लीजिए, सो इट वोंट बी एन इशू। आपको एक टाइम दिया होगा ना फॉर्म भरने का, तो जो भी लास्ट डेट है, समझो समझो 10 में लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो अगर 9 में या 8 में तक आप वो सर्टिफिकेट बना पाओ सेंट्रल का फॉर्म नंबर 9 ओबीसी का, तो आप निकाल लीजिए। नहीं निकाल पाते तो भी आप स्टेट गवर्नमेंट का है उसको भर के आप डाल सकते हो बाद में। बट मेरा हिसाब से शायद यूपीएससी का डिस्कशन है, तो ऐसे क्लियर नहीं है यूपीएससी का कि ये चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सो अगर आपके पास टाइम है अभी तो निकाल लीजिए। अगर लास्ट डेट फॉर्म भरने का गया ना हो तो अभी निकाल लीजिए, आप फिर ओबीसी से भर देना। सो आई थिंक वी आर टेकन लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस है इंस्टाग्राम पे आप गेट इन टच एंड श्योरली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दोस क्वेश्चंस। सो सो यू आर सेइंग स्टेट गवर्नमेंट का है विच इज वैलिड टिल जुलाई इन स्टेट। व्हाट आई एम सेइंग इज अगर जो आप सीएपीएफ एग्जाम दे रहे हो उसका अगर लास्ट डेट फॉर्म भरने का निकल गया है तो फिर तो आप जो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का है उस फॉर्म से भर दीजिए। अगर डेट नहीं गया है, लास्ट डेट बाकी है सीएपीएफ फॉर्म भरने का, तो उस लास्ट डेट के पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स यूपीएससी टाइम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग माय स्ट्रेटेजी एंड माय जर्नी विथ एस्पिरेंट्स। और जो भी एस्पिरेंट्स है लगता है कि उनको और कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, surely regarding CAPF, regarding IFS, regarding civil service exam, and regarding perseverance, because I have I had 8 years, 8 years I was in preparation. So you can surely get in touch on me on Instagram. So thanks a lot. See you then. Bye.